अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीरियाडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और ग्रुप जो बने हुए हैं उसको पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात कही थी कि पीरियाडिक टेबल क्या है और ये किस तरह डेवलप हुआ, यानी अल-राज़ी की सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से ये पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कैसे बना, ये अरेंजमेंट, ये तकसीम, ये डिवीजन कैसे बनी, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कि इसमें एलिमेंट किस तरह अरेंज है, उसमें पीरियड्स है, ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स। व्हाट आर पीरियड्स? Period. A period is a horizontal row of the periodic table. पीरियाडिक टेबल का जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे उसको हम कहेंगे पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज कौन से? ये वाले, दीज दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज। दीज आर, ये जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से शुरू होके, ये यहाँ से शुरू होके ये हॉरिजॉन्टल रोज जो आगे जा रही है यहाँ तक, दिस इज़ वन पीरियड, पीरियड वन। फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल रो जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, दिस इज़ द अनदर पीरियड, सेकंड पीरियड। सिमिलरली ये तीसरा पीरियड है, ये यहाँ से होके ये तीसरा पीरियड है। तो these are the horizontal rows. Horizontal mean on x axis. These are horizontal rows. ये horizontal row, ये horizontal row. These horizontal rows are called periods. ये हमारे पास periods है। There are 7 period in periodic table. Periodic table में there are 7 period, 7 period है। Period 1 is the shortest period, has only 2 elements. Listen. Period 1 is the shortest period. ये it include only 2 element, hydrogen and helium. While the second and third period, these two, the second and third period, these two are called the short period. ये जो दो पीरियड है ना, ये वाला यहाँ से ये पूरा जो रो बन रहा है, एक मिनट, ये जो दो रो बन रहे हैं, इस सेकंड और थर्ड, दे आर शॉर्ट पीरियड। ये जो दो रो बन रहे हैं ना, दीज आर शॉर्ट पीरियड। ईच कंटेन 8 एलिमेंट। दिस इज द सेकंड पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड which contain 8 element starting from lithium to neon. Starting from lithium to neon. lithium से ये शुरू हो रहा है और ये नियान पे ख़त्म हो रहा है। This is the second period. 1 2 3 4 5 6 7 8. It contain 8 element. The third period which start from sodium and in it argon, it also contain 8 element, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These two periods are called short period. The fourth and fifth period, these two, just a minute, these two periods, these two periods are called long period. Fourth and fifth period, they are called long period. They contain 18 element in each. In each of them 18 element are present. This is fourth period and this is fifth period, sorry. The fourth period start from potassium
and ends at krypton. Now count the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Similarly in period 5, 1 which is started from rubidium and end at xenon. Now count the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So these two period, they contain 18 element each. They contain 18 element each. The sixth period is called the longest period. This is the sixth period. This is called the longest period. Sixth period is called the longest period. It starts from cesium. It starts from cesium and it goes here. And then start from here. And then start from here up to this one. Now, sixth period start from cesium. And it end at this Lu, lawrencium. It contains 18 normal elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And it contains 14 lanthanide which start from cerium. From here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. These 14 are called lanthanide. They are called lanthanide. अब यहां पर दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, इस सीरीज को लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, जो यहां से शुरू है यहां तक. इसको लेंथेनाइड इस वजह से कहते हैं कि ये सीरीज लेंथेनम के बाद शुरू होती है. यहां पर आप देखिए लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57 और सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58. दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर द लेंथेनम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज. पहला क्वेश्चन. दूसरा, इनको पीरियोडिक टेबल की बॉडी से बाहर क्यों रखा है. ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी है, इससे इनको बाहर क्यों रखा है. तो ये थोड़े से बागी है. इनकी करेक्टरिस्टिक इनमें से किसी के साथ नहीं मिलती, इसी वजह से इनको बाहर रखा है. तो छठे पीरियड में 18 ये एलिमेंट हो गए बॉडी के अंदर और 14 हो गए बॉडी के बाहर. तो टोटल एलिमेंट कंटेन इन पीरियड 6 आर 32 and this is the longest period. This is the longest period. Seventh period is called incomplete period. It contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of these and 14 of actinide series. This from thorium to lawrencium. ये ल्यूटीनियम है, ये lawrencium. These 14 are called actinide series. They are called actinide series. They are called actinide series. They are called actinide series. Why they are called actinide series? Because they started after actinium. It is 89 and this is 90 atomic number.
इसको इधर होना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज इन ऊपर वालों से नहीं मिलती, तो इस वजह से इनको भी बाहर रखा है। तो इसमें 14 एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज के है, जबकि बकाया इस नॉर्मल एलिमेंट के है। ये जगह भी खाली है, मजीद डिस्कवर होने हैं। दैट इज वाई वी से दैट 7 पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। आप देख लें, period 1 is the shortest period containing only 2 elements, hydrogen and helium. Period 2 and 3 are called short period having 8 elements in each. एक एक डिस्कस किया उधर। Period 4 and 5th are long period having 18 elements each. And period 6 is the longest period containing 32 elements. Finally, period 7 is incomplete period. जो पीरियड 7 है, इट इज इनकम्प्लीट। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। पीरियड्स तो हो गए, नाउ ग्रुप्स। व्हाट आर द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल? द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। द वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल थे, अब ये हमारे पास वर्टिकल है। The vertical column in the periodic table are called groups. आजा, अब ग्रुप में एक बात यह है कि ग्रुप कहते हैं, यहाँ पर ग्रुप से हमारी मुराद फैमिली होगी, खानदान होगी। खानदान में एक जैसे लोग रहते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एलिमेंट एक जैसे खुसूसियात वाले होंगे उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे। एलिमेंट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड फैमिली। ग्रुप को फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप को फैमिली क्यों कहते हैं? ग्रुप को फैमिली इसी वजह से कहते हैं कि इनमें हम ऐसे एलिमेंट को रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फैमिली। ग्रुप दो किस्म के हैं, ए ग्रुप एलिमेंट और बी ग्रुप एलिमेंट। ए ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट। ए ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं और ए ग्रुप को मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि मेन ग्रुप एलिमेंट कौन है, तो ए ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है? ए ग्रुप। सम ए ग्रुप है स्पेशल नेम। कुछ ए ग्रुप की स्पेशल नेम है, जैसे फर्स्ट ए का नाम है अल्कली मेटल, सेकंड ए का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, 7 ए ग्रुप का नाम है हेलोजन, और ये हमारा 8 ए है। सॉरी, ये 7 नहीं है, ये 8 है। यहाँ पर एक और भी है। 8 ए ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेस। ये कुछ ए ग्रुप एलिमेंट के स्पेशल नेम है। बी ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बी ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होते हैं, दैट इज ट्रांजिशन इन बिटवीन, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब वापस आते हैं इस पे। यहाँ पर आप देख ले, ग्रुप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। 2 ग्रुप्स, ए ग्रुप एलिमेंट एंड बी ग्रुप एलिमेंट। ये जो यहाँ से ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड बी ग्रुप। इसको बी ग्रुप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बी ग्रुप एलिमेंट। बी ग्रुप, ये पूरा बी ग्रुप है। आप देख ले, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये वाला, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये पूरा, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, ये चौथा है। ये देखो, हर एक कॉलम एक ग्रुप है। सिमिलरली ये भी एक ग्रुप है। ये यहाँ से शुरू होके नीचे तक ये जो वर्टिकल कॉलम है। सिमिलरली ये जो कॉलम है, ये सारे ग्रुप्स हैं।
अब ये जितने कॉलम हैं यहाँ से ये 10 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इन सब को इकट्ठा कहते हैं बी ग्रुप। और ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, इसको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकी और इनकी दरमियान में है। अब ए ग्रुप एलिमेंट क्या है? दो ग्रुप, ये दो ग्रुप, यानी ये वाला और ये वाला, दो ग्रुप ये, और आपके पास 6 ग्रुप ये, यानी ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये 1 2 3 4 5 6 ये और दो ये जो 8 ग्रुप है इसको कहते हैं ए ग्रुप एलिमेंट। यानी दो ग्रुप ये जो एरिया है यहाँ से इस साइड पे जो एरिया है ये, और यहाँ से इस साइड पे जो एरिया है ये पूरा एरिया, ये ए ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं और इसको नॉर्मल एलिमेंट, इसको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, और ये ए ग्रुप है। ये जो है आपके पास ये पूरा बी ग्रुप है। फिर इस ग्रुप 1 ए का, इसका ग्रुप 1 का नाम अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, और सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहते हैं, यानी इनकी जो बेस बनते हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, दैट इज वाई इसको अल्कली कहते हैं। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप को क्यों कहते हैं? वो इसी वजह से कहते हैं कि इनकी हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल है, तो ये अल्कलाइन हो गए, और इनके मिनरल्स अर्थ में ये ज़्यादातर अर्थ से एक्सट्रैक्ट की जाते हैं, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो 7 ग्रुप है, ये 7 ग्रुप, इसको हेलोजन कहते हैं। हेलो मीन साल्ट, जन मीन जनरेशन, ये साल्ट बनाते हैं जब इस वाले से मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें सोडियम जब क्लोरीन से मिलता है तो सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम जब क्लोरीन से मिलता है तो पोटाशियम क्लोराइड, ये भी एक साल्ट है, बना देता है। और 8वां ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये नोबल शरीफ है, किसी को छेड़ते नहीं है, शरीफ खानदान से है। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जीरो है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये थे हमारे पास पीरियड और ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पीरियड्स और ग्रुप